Okay. Oh. Hmm. Okay. Let me just start. Assalamu alaikum and good evening. You are listening to the Voice of Capital FM 97.6 Coming live from our homes from Islamabad. slash Quetta. I am your host, Rimsha Imran, And I'm Hamza with Harun. me, and you are watching Natkhat Natkat Nama. Nama. So Rimsha, how are you doing now? I'm good, Glad to see you here Alhamdulillah. today. Thank you. Same. How are you? We're doing pretty well here. So, Mhm. guys, those who are here and watching us today, so we have our guest today, and it's our topic of today is related to leftover foods, which is a big, Food wastage. yeah, food wastage, which is a big talk all around the world. And we have our special guest today, Miss Maria Mahmood and Miss Saida Warduh Noor. Sayyida Varda. Yeah, Yeah. Saida Miss Wardah. Mariam Yeah. Mahmood and Sayyida Varda. Yes, exactly. So, Yeah. and we're going to welcome them today, and they'll tell us Yep. about this issues that's going on around the world. Assalamu Assalamu alaikum. alaikum. Walaikum assalam. Welcome to the show. Thank you so much. Walaikum salam. How are you doing? We're doing pretty good. Alhamdulillah. Okay, thank you. How are you people? Alhamdulillah, fine. Good, good, So, good. before we start, I would like to tell our viewers, our audience, that whatever you question or whatever query or जो आपने सवाल पूछना है, आप comment section में पूछ सकते हैं, and we will discuss this about on the podcast now. So, as we are let's start what we're talking about. Leftover food wastage are all around the world, and how are we dealing with it? So, food waste is a very, very big, major problem. It's a main contributing factor in starvation and poverty all over the world, as we all know this. So, our special guests that are here with us today, they call themselves as the leftover cheers. Their main focus is on food waste and how to manage it. So, I would like to कॉल देम कि वो बताएं कि उनका मेन फोकस क्या है, वो हमारी यूथ को क्या समझाना और क्या बताना चाहते हैं. Okay. Thank you, Rimsha. Basically, first of all, I want to describe our name, Leftover Chairs. Uh, Basically, we girls, 14 girls. The leftover chairs is due to force. जो force है उसके पीछे is 14 girls. No boy or all that. तो हम इको इंटर्नशिप करे थे WWF के साथ. तो एज अ टास्क हमें कहा गया कि we should run some campaign. So we decided to work on food waste. तो फिर उसके बाद नेम सोचा एंड नेम क्रेडिट गोज टू सईदा वर्दा नूर. लेफ्ट ओवर मीन्स जो भी हमारा फूड जो बच जाता है घर में, और चीयर्स मीन खुशी. सो लाइक अर लेफ्ट ओवर कैन बी अ रीजन ऑफ चीयर्स ऑफ समवन, कि हमारा जो फूड बच जाता है अगर हम किसी को दे दें तो इससे उसको खुशी हो सकती है. तो दैट्स ऑल. और उसके बाद our main focus is on food waste, how we can manage the food waste. Then we are launching some webinars जिसमें हम अवेयरनेस रेस करें कि फूड वेस्ट होता क्या है एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फूड वेस्ट, how food waste is directly related to hunger and climate change. And then we had some surveys, और उन surveys का भी हम डिस्कस करते हैं, और जो बाकी है वो आपको वर्दा बताएंगी about our campaign. That's pretty cool. So, Thank you, yeah. So, Maria. Miss Varda. Yes. So सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता देती हूँ ताकि ये सिनेरियो क्लियर हो जाए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम आउट ऑफ नोवेयर कर रहे हैं. पाकिस्तान में हंगर वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी और बीमारी से पहले लोग भूख से मरते हैं. उसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मेंशन करें तो पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग फूड इनसिक्योर हैं. उनके पास खाना मौजूद नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि उनको अगला खाना मुयस्सर होगा या नहीं. फिर दूसरी तरफ 40% फूड पाकिस्तान में वेस्ट हो रहा है. यानी एक तरफ हमारे पास खाना ज़ाया हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास लोग भूखे हैं. मेन चीज़ इसके दरमियान हमारे पास है हमारी अवाम, हमारी यूथ, हमारे एल्डर्स, जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता
कि जो खाना बच रहा है हम उसको उस तक पहुंचा दें जिसके पास खाना नहीं है। इवन व्हेन यू टॉक टू देम अबाउट इट, तो वो थोड़ा टैबू होता है अराउंड द सब्जेक्ट ऑफ फूड, क्योंकि आपने ये फेमस सुना होगा, खाना ज़्यादा हो जाए लेकिन खाना कम नहीं होना चाहिए। तो फिर जी हमने जी देखा सुना कि है। इसमें सिर्फ हमारा नहीं आ जाता, सिर्फ हम इसमें मार्केटिंग आ जाती है, लेबलिंग आ जाती है, इसमें कल्चर फैक्टर्स भी हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। बट फिर जब हमने डिफरेंट सर्वेज और रिसर्च को देखा तो पता चला सबसे ज़्यादा खाना घरों में ज़ाया होता है। तो वी थॉट यार अगर घर बैठे बैठे हम क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकते हैं और वर्ल्ड हंगर अपने मुल्क में कम कर सकते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं है। मतलब वाई डू वी नीड एन ऐप, अ कंपनी जो आके हमारी इस कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसको मार्केटिंग स्कीम बनाए। क्यों ना हम खुद ही उठ के वो खाना किसी और को पहुंचा दें और इस बात तक ही ना आने दें कि वो खाना इतना सारा ज़ाया हो। सही, डेफिनेटली बात तो है ये। और हमें इसके ऊपर लाइक काम तो करना चाहिए, लाइक This is हमें a अपने very, घरों से very स्टार्ट good करना चाहिए। initiative, no लाइक doubt. ऑब्वियसली घर से अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो कम्युनिटी में अफेक्ट कर सकते हैं, अपना सोसाइटी, बिल्कुल. स्पेशली रेजिडेंट्स एंड ऑल दिस एंड दैट। तो ये है, अच्छा है। तो लाइक अब हम फूड वेस्टेज के बारे में, जैसे अब घरों से स्टार्ट है, अब स्पेशली अगर लाइक रिमशा एंड ऑल, अगर देखा जाए जैसे शादी में हो, लाइक फंक्शंस एंड Yeah, शादी, तो that's मोस्ट the ऑफ द main thing. या हाँ. मोस्ट फूड वेस्टेजेस एंड लाइक बहुत सारे लोग खाना प्लेट में डालते हैं एंड दे ईट लिटिल, बहुत थोड़ा सा खाते हैं, फिर बाकी प्लेट में छोड़ते हैं। बंदा सोचता ये है यार मेन फिर रीजन ये भी होता है कि जैसे शादियां इन्होंने रखी होती हैं, आप लोग 8 बजे आ जाए लेकिन खाना 12 बजे लगाते हैं। ये लोग बेचारी हमारी आवाम भूखी होती है, वो फिर जाते हैं खाना खाते हैं, दे जस्ट फिल अप देयर होल प्लेट। एंड ज्यादातर इसमें या होता है कि हाँ, मतलब दैट्स द मेन थिंग। तो फिर उसके बाद इस चीज की वजह से बहुत वेस्ट होता है फूड, कि मतलब दे डोंट ईट जी। एवरीथिंग ऑन देयर प्लेट। ऊपर से फूड वेस्टेज, मतलब जब जैसे खाना फेंकते हैं तो जितना पाइल अप होता है, ऑब्वियसली खाना लाइक इट रॉट्स अवे, तो इससे मीथेन गैस भी बनता है, जिससे ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट होता है। बिल्कुल. इट्स अ प्रीटी बिग इशू एंड उनके इनिशिएटिव बड़ा सही है। लाइक अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम कम्युनिटी एंड वी कैन इन्वॉल्व एवरीवन एल्स इन बिल्कुल. इट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, एक्सक्यूज़ मी। श्योर श्योर। जी जी. ये इस्लामाबाद में अगर हम रेस्टोरेंट्स को देखें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो एक दिन में उनके पास 800 किलो फूड बच जाता है, अनटच्ड क्लीन फूड। और अगर मैं वाओ। आपको एक और मज़े का मतलब फैक्टर बताऊँ कि 1 किलो फूड से आप 3 लोगों का पेट भर सकते हैं। तो दिस डेफिनेटली। मेक्स अस थिंक, या सो व्हेन यू गो टू देम, आपको जी आप हम आपको एक ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आपका जो खाना बचता है बराए मेहरबानी उन तक पहुंचा दें विदाउट एनी कॉस्ट। एंड ऑब्वियसली वो 10 मिनट्स, हर 10 मिनट्स बाद कोई ना कोई गरीब होता है, कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे किसी को भूख लगी होती है, एंड उनके सबसे पहला रिस्पॉन्स यही होता है, नहीं ये हमारा पैसा है, हम इसको फेंकते हैं, हम इसको घर ले जाते हैं, हम जो भी करते हैं, हमने आपको नहीं देना। रिस्क फाउंडेशन का लोगों ने सुना होगा और दिस इज देयर स्टार्टिंग पॉइंट। तो दे सेड कि लोग हम अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट पीपल। सो आई जस्ट होप कि लोगों को एहसास हो कि आप बस एक घर की जिम्मेदारी लें, एक घर की, एक बंदे की, और यकीन जाने पाकिस्तान से एक हफ्ते में, एक महीने में आप भूख खत्म कर सकते हैं अगर हम सब ने एक घर की जिम्मेदारी उठा ली, सिर्फ खाने की, नॉट इवन जी एजुकेशन, जस्ट फूड। सो दैट्स जी। अ फैक्टर जो हमें देखने की ज़रूरत है। हमें ऑब्वियसली इस पे फोकस करना चाहिए, और स्पेशली यूथ को, बिकॉज रिस्क फाउंडेशन एक यूथ फाउंडेशन ही है। 3 जवान लड़कों ने स्टार्ट किया है, और ये हम जो बैठे हुए होते हैं हर वक्त फ़ोनों पे, हम पे ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क आता है कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम लोग तो बस बोलने के लिए रह गए हैं और कुछ करना नहीं आता। सो जस्ट आई होप कि जो भी सुन रहा है वो अपने घर से बस एक बंदे की जिम्मेदारी उठा ले, बेशक वो आया है, माली है, उनका ड्राइवर है, गेट कीपर है, जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन। जी जी डेफिनेटली। आपकी एजुकेटिंग एंड अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। यस और वही ये हमजा है। वाली बात के हमारे घर से अगर हम खुद शुरू करेंगे तभी हम दूसरों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये है। अब मिस सईदा की एक बात से मुझे एक वाकया याद आया है। लाइक दिस हैपन, ये सऊदी अरेबिया में एक नेबरहुड में ही होता है। लाइक उन्होंने एक अपने किसी ने अपने एक घर के बाहर एक लाइक डबल डोर फ्रिज रखा है जो ट्रांसपेरेंट जो होता है।
तो उन्होंने अपने नेबरहुड में उन्होंने ये लाइक सारों ने अग्रीमेंट किए कि वट एवर लाइक बचा खाना है लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ लाइक फेंकने के बजाय वो उधर फ्रिज में रख देते हैं। तो उधर उन्होंने साइन रखा हुआ है कि जी जो लेना ले लो, लाइक टेक टू योर फिल, मतलब जो अपने खाना लेना ले लो। मतलब इससे ये है कि मतलब हम पाकिस्तान में तो सिर्फ नहीं पूरा दुनिया में देखें कि लाइक एवरीवन, हर कोई इस कॉस्ट के अगेंस्ट जा रहा है कि लाइक इसको कैसे काउंटर करें। तो लाइक सऊदीया भी इस तरह एक है कि उन्होंने लाइक ऑब्वियसली नेबरहुड है, जैसा हमने बात की घर से स्टार्ट करेंगे तो कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होंगे। तो उन्होंने इसी तरह किया है, फ्रिज में जो बचा खाना रख देते हैं, लाइक जिन्होंने खाना है आके ले सकता है एंड ऑल दैट, तो इज इजी ना एक्सेस एंड ऑल दैट, ये है। बिल्कुल। Yes, Hamza, I'm really happy जो आपने बताया है. That's all we want. और I'm also happy that you raised really to like. I'm surprised कि आपको मीथेन गैस वाला वो जो है आपको उस फैक्ट का भी पता है, और जो आपने वो बात की कि वेडिंग वेन्यूज पे सबसे ज़्यादा खाना वेस्ट होता है. When we did surveys, we came to know that our public actually know that कि रेस्टोरेंट्स और वेडिंग ये जो प्लेसेस हैं हाईएस्ट रेशियो है फूड वेस्ट की. तो हमने जब उनको सजेस्ट किया कि आप रेस्टोरेंट्स में जो फूड आपका ऑब्वियसली वी ऑर्डर और हम जब करते हैं तो हम नहीं कंप्लीट कर पाते सारा, तो जो बच जाता है आप क्या करते हैं. सो वी सजेस्ट देम विथ 2 to 3 ऑप्शंस. तो हमने उसमें से एक ऑप्शन था कि आपको वो ना नीडी को दे देना चाहिए. तो 99% ऑलमोस्ट व्हेन वी डिड 4 to 5 सर्विस कि उन्होंने कहा यस वो डिड दिस. लेकिन ऐसा नहीं होता. Whenever I go, I see that कि जो बच जाता है वो वहाँ ही प्लेट्स में पड़ा रहता है, या जो भी सर्विंग डिश है उनमें पड़ा रहता है. हम ये कर सकते हैं कि हम उनसे कह सकते हैं कि इनको पैक कर दें. और बिलीव मी, जब आप स्टेप आउट करते हैं इस रेस्टोरेंट से तो बहुत ज़्यादा बेगर्स और नीडी खड़े होते हैं. आप वो उनको दे सकते हैं बिल्कुल. क्योंकि रेस्टोरेंट वालों ने ये काम बिल्कुल, नहीं बिल्कुल. करना. ये है रेस्टोरेंट्स एस्टेब्लिशमेंट, दे मतलब इसकी चीज़ों में परवाह नहीं करते हैं। वो एट द एंड ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं इसके। यस. और जो मीथेन गैस वाली बात की आपने, तो यस ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम क्लाइमेट चेंज से फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा रिलेटेड है. इनफैक्ट एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर हम कंट्रीज की बात की जाए तो आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना फूड वेस्ट इज हाईएस्ट सोर्स जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है. कि क्योंकि वी हैव नथिंग कि हम उसको जब भी फूड वेस्ट है हम उसको लैंडफिल्स में डिस्कार्ड कर देते हैं, और देयर इज जी। नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन लैंडफिल्स. तो वो डायरेक्ट मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वो सब एक, और हंगर के अलावा भी लाइक क्लाइमेट से भी इसका बहुत बड़ा लिंक है. ये है। तो ये कह रहे हैं दिस इज नॉट लाइक इट्स नॉट अ कंट्री इशू, इट्स अ ग्लोबल इशू. जैसे इसमें था कि आई माइट लाइक टू ऐड कि टुडे वी प्रोड्यूस इनफ फूड for to feed everyone in the world, but due to political issues it is not at all distributed evenly. और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये मेन चीज जाती है हमारे फिर आगे. नो डाउट इनिशियल स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू जस्ट टू नो, टू अंडरस्टैंड कि ये क्या अफेक्ट और ये क्या कॉज, मतलब ये क्या कर क्या रहा है फूड वेस्टेज. एंड या तो पॉलिटिकली और ये इन चीजों के लिहाज से आपका क्या ख्याल है कि पॉलिटिकली भी ये चीजें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मैटर्स है ना, कि पॉलिटिकली अगर ये राइज होगा मैटर तो इट्स मोर गोइंग टू हेल्प इन सम सॉर्ट. Actually, to answer your question, no, पाकिस्तान में इसके लिए कोई भी मैनेजमेंट नहीं है. फूड वेस्ट के लिए ना कोई पॉलिसी है, बिल्कुल. ना कोई मैनेजमेंट है. एंड सरप्राइजिंगली WWF रिसेंटली स्टार्टेड दिस सर्वे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमें लीडर से बात करनी पड़ेगी कि आप कुछ रेगुलेशंस बनाएं ताकि लोगों को एहसास हो. वन ऑफ द थिंग इज आप ये सारा बोझ डाल सकते हैं या तो कंज्यूमर पे या फिर मार्केट पे, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली ये लॉस चाहिए. तो WWF ने सर्वे किया, और उस सर्वे में उन्होंने 4 मेजर सिटीज चूज की: पेशावर, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद. और उन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स जितने भी हैं हमारे पास, वो इतना खाना ज़ाया करते हैं, दे डोंट इवन केयर कि उनका कितना पैसा उस पर ज़ाया हो रहा है. दे आर लाइक हाँ ठीक है कुछ नहीं होता. एंड देन WWF ने वो सारा सर्वे डाटा कलेक्ट किया
and inshallah ताला they are planning to talk to our country policy makers कि please kindly इस issue को raise करें, because सिंध में 45% children all over Pakistan and mostly of them in rural areas of Sindh, उनकी ग्रोथ रुक गई है बच्चों की, वो भूखे हैं and they're like little babies और वो ग्रो नहीं कर सकते because उनके पास खाना नहीं है और इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, खाना नहीं है उनके पास, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और कराची में हमारे पास इतना खाना जनरेट होता है, इतने इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल नेशनल, बहुत कुछ खाना होता है वहाँ पे, पर वो उन तक नहीं पहुँचता। अगेन बीच में सिस्टम नहीं है, देयर इज नो सिस्टम दैट इज कनेक्टिंग दैट लेफ्ट ओवर फूड टू दैट नीडी पर्सन। और फिर हम जब ये साइकिल चलता रहेगा ना, तो ये फिर आज वो लोग हैं जिनको भूख लगी, कल आप हम सारों में से कोई एक हो सकता है। तो दैट इज बिल्कुल ये है डेफिनेटली। रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियलाइज करना पड़ेगा हमें इस चीज को। ये तो है, रियलाइज करेंगे तो जब अनलेस इट जब तक हमें खुद नहीं होता तब तक हम लोग लाइक डजंट रियलाइज कि दूसरों के साथ क्या होता है। सो एज लाइक दिस मैं अपना हमारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या इंक्वायरीज दैट यू वांट टू नो मोर अबाउट कि लेफ्ट ओवर फूड को कैसे डील करें, वेस्टेज को कैसे रोकें, सो डू go ahead and ask on the comments and we'll surely talk about it. So अभी जैसा कि देखा जाए कि जैसे अब ये वेडिंग्स हो गए, ग्लोबल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे मिसाजा ने बताया कि इंटरनेशनल एंड ऑल बेसिस में होता है। सो दैट्स प्रीटी मच हाउ इट इज। अब ये एक इसमें हम क्या कह सकते हैं, लाइक व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ये फूड वेस्ट। अगर देखा जाए मीथेन गैस बिल्डअप हो जाता है, जो अंडर प्रिविलेज जो होते हैं, दे कैन नॉट ईट प्रॉपर्ली एंड ऑल, तो हम इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? लाइक एनी आइडियाज एंड एनी सजेशन यू कैन गिव? सिंपल सी बात है, आपको अभी गर्मी लग रही है ना, अभी आप बाहर जाएंगे आपको पसीना आ रहा होगा। क्लाइमेट चेंज, कल को ये क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल हो जाएगा और हम इसका कोई रिवाइंड बटन नहीं है। तो यही एक चीज़ है कि हम लोगों को एहसास दिला सकते हैं कि आज जो हमारे पास टाइम है वो कल नहीं होगा। पाकिस्तान में बहुत रिसोर्सेज हैं, इनफैक्ट हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अपनी डबल पॉपुलेशन फीड कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन से डबल अमाउंट, लेकिन वो खाना उन तक नहीं पहुंचता। कमजोरी हम में है। तो सबसे पहली चीज़ ये खुद को चेंज करना। जैसे हम 14 लड़कियां हैं तो हम खुद को चेंज कर रहे हैं, घरों में मम्मा को कह रहे हैं मम्मा प्लीज़ खाना ज़ाया ना करें, आप इधर दें मैं इसको पहुंचा देती हूँ किसी तक। या घर में खुद जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप ज़्यादा बाय ना करो। इनफैक्ट मार्केटिंग स्कीम यही है कि आप ज़्यादा बाय करो, इतना ज़्यादा बाय करो कि आप खा ना सको लेकिन आपके पैसे ज़ाया हो। तो वो मार्केटिंग स्कीम के लिए फॉल ना करें। और एक और चीज़, अगर किसी फल सब्जी पे ज़रा सा दाग लगा हुआ है, कुछ नहीं हो जाता, आप खा सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली एडिबल। लोग एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा आ गए हैं कि जो चीज़ आप खा सकते हैं और जो चीज़ नहीं खा सकते, बस उसमें यही फ़र्क रह गया कि भाई छोटा सा दाग आ गया, ठीक है मैंने नहीं खाना। तो डोंट डू दैट। और आप कंपोस्ट कर सकते हैं, लाइक कंपोस्टिंग इज़ द बेस्ट मेथड। और आप उस कंपोस्टिंग के मेथड से लाइक आप बिजनेस भी बना सकते हैं। जिस तरह Rashid in Karachi, they made this business where उन्होंने different industries और इन सबसे कहा कि आप बस एक काम करें, हमें अपना ऑर्गेनिक फूड दें, कुक्ड फूड नहीं ऑर्गेनिक फूड। और वो ऑर्गेनिक फूड लेके जाते, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते ओवर अ फ्यू वीक्स और उसको मार्केट में सेल कर देते। एंड दे आर अ ह्यूज बिजनेस, एंड वो साथ साथ अवेयरनेस भी ला रहे हैं। एंड दे आर नॉट जस्ट टेकिंग फूड, वो जाते हैं वहाँ पे वर्कशॉप्स करते हैं, इवन सोशल मीडिया पे उस बिजनेस को प्रमोट करते हैं जो इन्वायरमेंट का ख्याल रख रहा है। तो देर आर सो मेनी स्कीम्स एंड एक्चुअली दिस इज, अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वो इन चीज़ों से एक बिजनेस बना सकते हैं। Literally, there is a great potential for business in Pakistan because the problems we are facing in Pakistan, they need someone to obviously talk about them, उनके लिए कोई solution निकालें। अभी हमारा तो फिलहाल स्टार्टअप है, इंशाल्लाह जब ये सब ओपन हो जाएगा तो हम अपने प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे। That's pretty interesting. इंशाल्लाह। कंपोस्टिंग से मुझे याद आया, लाइक आई थिंक अ वाइल बैक, लाइक साल 1.5 साल पहले मैंने कोई सर्वे वीडियो देखा है कि लाइक ये लाइक लेफ्ट ओवर फूड या ट्रैश या ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लाइक दे आर मेकिंग बायोडिग्रेडेबल मीथेन गैस जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है एंड इट डजंट कॉज दैट मच हार्म। एंड पीपल, जो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कंपोस्टिंग से अपना गैस बनाते हैं
and they're using that for like heating up and cooking food and all. And इससे भी एक और पॉइंट याद आया कि लाइक कुछ जैसे फार्म जैसे आपने एस्थेटिक का बताया कि लोग अब प्रीटी मच एस्थेटिक दे चीज़ ठीक लगे तो वो लेते हैं, ना लगे तो वो नहीं खरीदते हैं। हमें खाना तो खाना है एट द एंड। तो मैंने जहाँ तक देखा है लाइक ये तो स्टार्टिंग होता है फार्म लैंड से, तो ऑब्वियसली जब वहाँ से प्रोड्यूस आते हैं सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा चीज़ ठीक लगता है इन गुड कंडीशन, वो आगे सेल आउट। जो चीज़ ठीक नहीं लगता है आई थिंक they either throw it away or they make it up मतलब जानवरों के फीड बना के उनको खिलाते हैं इस सेंस। Yes, Hamza, I was just coming to this point कि जो एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ है वो पैकेजिंग में भी है। फूड वेस्ट होता है, कुक्ड फूड तो वेस्ट होता ही होता है, लेकिन एक और चीज़ ये है कि फूड जब हम तक पहुंचने से पहले देयर इज लॉट ऑफ लॉस ऑफ फूड। पैकेजिंग में इतने इश्यूज हैं कि इनफैक्ट वी वर अटेंडिंग वेबिनार यस्टरडे जिसमें वो यही बता रहे थे कि लाइक उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हुए थे, इवन दे उन्होंने खुद उस जगह पे जाके दे क्लिक पिक्चर्स कि जब वो ओपन करते हैं लाइक वो भी जो उनकी वो वुडन बॉक्स होती है जिसमें वो टोमेटोज वगैरह ऑल दैट, तो जब वो ओपन करते हैं तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने इस तरह वो इतने ज़्यादा वो लाइक वो फिलअप की होती है कि वो कुछ आपस में मतलब उनका वो ख़राब हो चुका होता है और ऑल दैट। तो इससे उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज की पैकेजिंग इतनी वो खराब होती है कि इस सब के दौरान ऑलरेडी फूड लॉस हो चुका होता है, वो उसको वहाँ ही फेंक देते हैं। तो ये भी है और इसमें वही गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर नॉट वर्किंग ऑन दिस इशू, लाइक फूड वेस्ट को कोई इतना बड़ा इशू ले ही नहीं रहा। बिफोर दिस कैंपेन आई डिडंट नो दैट, मुझे ये लगता था कि वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री तो वी हैव नॉट इनफ रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई वी हैव दैट मच हंगर रेट। लेकिन आई केम टू नो दैट कि पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग मच मोर फूड than total population. Like if we want, we can feed our double of this population. लेकिन उसके बावजूद 18% is the ratio जो बिल्कुल टोटली जिनको इनफ नहीं मिल रहा फूड। तो रीज़न क्या है ऑल कि हम इस चीज़ को इतना ले नहीं रहे सीरियस। इवन फूड अथॉरिटी इज़ नॉट वर्किंग ऑन दिस। मैंने पूरा काफ़ी ज़्यादा आई रिसर्च लेकिन आई डिडंट फाउंड एनी आर्टिकल और एनी वर्किंग समथिंग के फूड जो मिनिस्ट्री है वो कुछ इस पे काम कर रही है, नथिंग एट ऑल। और वर्ल्ड वाइड भी यही कंडीशन है कि इवन ग्लोबली वी आर प्रोड्यूसिंग more food than our total global population, but still 690 million people are the ratio जो hunger rate है। Yeah, we have a few comments here. Awais Kamar, like he appreciate the comment of Miss Saida of about the leftover cheer, and also from Komal Farooq Khan, who said there is a very good initiative है ये start कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में और तो like food से related बात एक चीज़ याद आया like obviously अगर food की बात करें we think about kitchen and the kitchen is all about the chef, the one who cooks. So अगर देखा जाए like everyone knows about Gordon Ramsay, right? One of the great chefs in the world. उसके एक उसका जो शो था हेल्थ किचन, उनमें एक एपिसोड उन्हें बताया कि जब वो प्रेप बनाते, जब खाना की प्रेपिंग करते हैं कस्टमर्स के लिए आने के, तो ऑब्वियसली ट्रिमिंग करते हैं मीट को, पील करते हैं वेजिटेबल्स एंड ऑल दिस ना। तो उन्होंने ये रखा हुआ है रूल के जो ये इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दोस कटआउट्स इन द ट्रैश, मतलब फेंकने के बावजूद उन्होंने लाइक अपने जो स्टाफ के लिए उससे खाना बनाते हैं, एक न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड ऑल दैट। क्योंकि अगर फूड के अगर देखा जाए ना तो कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ज़्यादा पीक होते हैं आइदर इन लाइक जैसे पोटैटो स्किन्स, ट्रिम्स ऑफ मीट, फैट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो लाइक कुछ अराउंड द वर्ल्ड जो टॉप क्लास शेफ्स रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि they try to avoid by wasting food or throwing away food. Even they're trying to use the trims, जो trims cutouts हैं वो खाने पे इस्तेमाल करते हैं। Yeah, you're right. And this ये initiative लेना पड़ता है। जी बोलो। बिल्कुल नहीं, मैं बस ये कहती हूँ कौन मैम आप बोले? मैं मैम नहीं हूँ। मैम नहीं है, मिस है मैम, सॉरी।
confusion. It's okay. It happens. You can also call me Ma'am Rimcha and we'll be even. Okay, okay. No, let's just talk about food. Like, अच्छा आप लोग मुझे बताएं, आपको सबसे ज़्यादा खाना कौन सा पसंद है कि अगर वो आपके सामने आ गया तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं बचेगी? Well, Rogni naan and kebab. Oh my god. well, for mere ke liye, I'm not a choosy eater. Like I pretty much eat anything that's in front of me in the plate. So yeah, ठीक है. but No, I I cannot think say no to meat. सही I है, just ठीक want है. to add 2 things more. जब हम ये कर रहे थे तो we also made some awareness videos जिसमें हमने ये कहा कि like जिस तरह अक्सर like चिकन कढ़ाई बन गई है, हमने खा लिया all that, फिर ऐसा होता है कि बच जाता है कुछ ना कुछ, हम उसको जो लाइक वो दिल नहीं किया ऑब्वियसली कि एक नया खाना बन गया है और वी डिडंट केयर अबाउट दैट, तो हम कैसे उसको दोबारा यूज कर सकते हैं. हमने कुछ रेसिपीज इवन उन वीडियोस में ऐड की कि हम उनको लाइक आप उसको वेजिटेबल इस तरह कुछ बच गया, चिकन बच गया है तो आप पास्ता में डाल लें, आप उसको मैक्रोनीज में यूज कर लें, कि किस तरह आप उसको दोबारा से रिपर्पस कर सकते हैं अपने लिए. और सेकंड चीज जिसमें लाइक मैंने अपने घर में भी बहुत ज्यादा नोटिस किया है और देन वी टॉक्ड अबाउट दैट कि होता ये है कि जिस तरह आई मेंशन कि वो चिकन कढ़ाई हमने बना ली और वो जो बच गई हमने उसको फ्रिज में रख दिया, इवन वो नो दैट कि वो हमने नेक्स्ट टाइम में एक और नई डिश बन जानी है, और लेकिन ये होता है कि चलो कोई ना कोई खा लेगा. इसी तरह वो आई डोंट नो कि आप लोगों के घर में हुआ या नहीं, मे बी यू ऑब्जर्व दैट कि आप फ्रिज में देखेंगे कि कोई ना कोई लाइक बहुत कम क्वांटिटी में एक साइड पे सालन पड़ा होता है जिसको हम खा नहीं रहे होते, लेकिन हम उसको फ्रिज से निकाल भी नहीं रहे होते अनटिल अनलेस कि हम उसको फ्रिज खोलते हैं और फिर हमें फील होता है कि लाइक ये खराब हो चुका है, नाउ इट्स स्पॉइल्ड, और फिर उसको हमने डस्टबिन में फेंक देना होता है. तो वो जो 2 दिन वो हमारे फ्रिज में रेस्ट कर रहा होता है, तो वी जस्ट वांट कि वो जो रेस्टिंग है वो हमारे फ्रिज में ना करे. इवन फॉर बॉयज, हमजा यू Yes. शुड डू दिस कि क्योंकि लड़कियां मेनली होता है कि आप नहीं उस तरह बाहर जा सकते, कि आप उसको देख लें, अगर आप हमजा फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ है तो आप उसको निकाल लें, आप उसको अम्मी को कहें या सिस्टर को वट एवर कि वो आपको शॉपर में रैप कर दें, आप बैठ जाएं, बिलीव मी आपको कुछ ही फासले पे कोई ना कोई नीडी मिल जाएगा जिसको आप वो हैंड ओवर कर सकें. तो वी जस्ट ये तो वांट है. हम अपने ओन पे जितना काम कर सकें कि लाइक इफ वी स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ, डेफिनेटली आई बिलीव दैट कि चेंज जो हम खुद से शुरू करते हैं इट विल चेंज द वर्ल्ड इन लॉन्ग गो ऑल्सो. Yeah, like especially suppose अगर मेरे household में देखें ना तो like since young age मेरी अम्मी ने मुझे train किस्म का किया ना तो so I can be independent, cooking, cleaning and all this and that. So अब मेरा ये है कि like कुछ टाइम होता है ना like in time that you have a craving for something, you want to eat something nice and all this and that ना. So in my terms if I अगर मैं देखूँ कि fridge में कुछ like left over जैसे मरियम ने बताई कि like जैसे chicken कढ़ाई, अगर सपोज चिकन कढ़ाई लेफ्ट ओवर हो तो लाइक एंड आई वांट टू ईट समथिंग नाइस, सो मेरे के मुझे ज़रा फिर क्रिएटिव होना पड़ता है, लाइक व्हेन आई हैव टू कुक सो आई हैव टू रीयूज द इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस हो लाइक दिस एंड ऑल दैट. इट्स नॉट लाइक दैट हर वक्त कामयाब तो नहीं होता हूँ, बाज़ औक़ात लाइक कंप्लीट फेलियर भी होता है. बट एज यू सेड यहाँ कि लाइक should give it to the people who are needy, like those जो का माली हो गया, watchman and all this kind of people. हाँ definitely होना चाहिए ये. बिल्कुल. अच्छा, दिस वाज आल्सो ब्रॉट टू माय अटेंशन. ये नेकी की टोकरी एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था, तंदूरों के बाहर होता है कि वेयर पीपल कैन ऐड फूड एंड मनी फॉर पुअर पीपल टू ईट. इसका एक्चुअल इनिशिएटिव वैसे टर्की में हुआ था लेकिन अब पाकिस्तान में भी शुरू हो गया. Yes, I saw some videos on that. I'm really happy क्योंकि I guess before 1 year I saw that video जिसमें वो टर्की में ये सब कुछ हो रहा था. Then I came to know कि कुछ ही डेज पहले कि पाकिस्तान में भी इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है कि लाइक जो एक्स्ट्रा किसी ने रोटियां ले ली तो वो उसमें डाल देते हैं, जो भी वो नीडी वंस आते हैं तो वो हाथ से उस रोटी को पिक कर लेते हैं. सो यस, बिल्कुल. या बिल्कुल. ये जो रिस्क फाउंडेशन ने तो 4 अपने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं. एक तो रिस्क राशन है, एक उनका लंच बॉक्स है, एक फैमिलीज तक वो खाना पहुंचाते हैं और उनकी बड़े मजे मजे के छोटे छोटे रिक्शास फिर रहे होते हैं, खाना बांट रहे होते हैं. एंड एक्चुअली अगर बात करें तो ये करने के ऑब्वियसली दे हैव अ ह्यूज फाउंडेशन, बट आप लोग को तो मतलब पता ही है कि इतना बड़ा काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट और बहुत काम करना पड़ता है.
और सो स्पेशली मैन वही पावर भी चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा, और यू गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीडबैक बिफोर द पॉजिटिव फीडबैक। लोग पहले आपको नेगेटिव ज़रूर बोलेंगे, बाद में वही लोग आपको पॉजिटिव बोलें। सो इट्स हार्ड टू अगेन, जैसे मैं शुरू में मेंशन किया कि टैबू टॉपिक है, हम खाने के बारे में बात नहीं, खाने के बारे में ये बात कर सकते हैं कि क्या खाना है और क्या, लेकिन अगर हम किसी को कहें कि यार आप बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया कर रहे हो, या इवन अपने पेरेंट्स को भी बोलें, दे फील लाइक हम उनको ऑफेंड कर रहे हैं एंड एनीथिंग। सो या यही चीज़ होती है। मतलब पाकिस्तान तो 94th नंबर पे आता है आउट ऑफ 117 कंट्रीज इन द ग्लोबल इंडेक्स हम्म। फॉर हंगर। मतलब हम लोग अच्छे खासे बुरे स्केल में हैं, और हमने अगर इसको बिल्कुल। अपने हंगर रेट को ठीक नहीं किया तो फिर तो इट्स गोना ये बी अ है। बैड फाइट। या इसकी तरफ अटेंशन आना बहुत जरूरी है। आई Yes, I थिंक। agree with Verda. ये वाला scene है कि like we can't talk about that. It's not like sometimes it's feel like they are poor, so they are talking about कि यार खाना कम खाओ. Even I want to share एक मैं वाकया शेयर करती हूँ कि we went in restaurant, मतलब couple of friends, university friends. तो वहाँ पे जब हमने अपना इवन जब वो ऑर्डर करे थे तो आई मेंशन दैट कि यार बहुत ज़्यादा ऑर्डर करे, वी आर जस्ट 5, वी कांट डू दैट। तो वन ऑफ दैट गर्ल सेड नो यार, आई एम सो हंग्री। क्या हुआ मरियम? इवन लाइक मे बी उनको ये लगा कि शायद वी हैव टू शेयर मनी एट द एंड, तो मे बी शी सिंग फॉर दिस। और एक और वजह ये थी कि वो मेरे पे ट्रीट पेंडिंग थी, तो मे बी दे थॉट दैट कि यार इसने ट्रीट देनी है, सो दैट्स व्हाई शी इज सेइंग कि यार कम ऑर्डर करो। एट द एंड जब सब कुछ हो गया तो वही जिस तरह मैंने बोला, तो वो ऑब्वियसली चीज़ें बच गई थी, तो मैंने कहा ये क्या हो गया है? तो बस नहीं, और दिल नहीं है। तो वो सबको तो पैक चलो किसी ने करवा लिया। तो जो पेप्सी थी, तो हाफ बोतल ना पेप्सी की भी वो उसमें पड़ी हुई। तो जब हम जा रहे तो आई जस्ट सेड कि यार ऐसा करो इसको भी उठा लो। तो और मेरे ज़हन में ये था कि मेरे ज़हन में सिर्फ ये था, जब अंदर आ रहे थे तो आई सॉ दैट कि एक वो बैठा हुआ था साइड पे फ़कीर। आई मुझे बस वैसे आई थॉट कि आई डोंट नो उसने कभी ज़िंदगी में पेप्सी पी भी होगी या नहीं, एक वो वाला थॉट आता है ना ज़हन में। तो मैंने ये सोचा कि पेप्सी की बोतल भी हम उठा लेते हैं। तो दे वर लुकिंग एट मी कि यार कितना ऑकवर्ड लगेगा, हम पेप्सी उठा के जा रही है, लोग हमें देखेंगे। इवन वी पेड, हमने उसके पैसे अदा किए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये होता है कि यार लोग हमें देख रहे हैं। हम लोगों के डर से वो खाना वहीं छोड़ देते हैं। अब ऑब्वियसली वो जब हाफ बोतल रह गई है तो रेस्टोरेंट्स के लिए वो यूज में नहीं है कि वो खुद जब तक ना पिए। जी तो ये तो वो एक है। बहुत, जब मैं आखिरकार मैंने उसको खुद ही कहती ठीक है खुद उठा लो, तो मैंने उसको उठाया। जब मैंने बाय किसी को दे दिया, तो जिसको दी थी उसने द स्माइल, वो जो उसके फेस पे स्माइल थी ना, उससे एक वो सारी वो जितनी भी बातें थी नेगेटिव, वो ऑल दैट वो सब फौरन वॉश आउट हो गया। तो यही वाली बात है कि लोगों की बातें और ऑल दैट वर्दा ने मेंशन किया कि हम इस पे बात ही नहीं करना चाहते, इवन इट इज अ ये रियली है। रियली इशू। ये है बात है ऑब्वियसली कि हम इस हम देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अब ये हम लाइक इफ वी थिंक लाइक हमें भूल जाना चाहिए व्हाट अदर पीपल विल थिंक, कि लोग क्या सोचेंगे, हम क्या करें ये वो, क्योंकि हम अपने दिल से कह रहे हैं कि यार ऑब्वियसली हम इंसान हैं, वी हैव टू हेल्प ईच अदर आउट एट द एंड, क्योंकि लाइक वी हैव टू हेल्प ईच अदर, क्योंकि दे आर कुछ लोग ऐसे दे आर लेस फॉर्चुनेट देन अस कि हम खाना खा सकते हैं बाहर एंड ऑल दिस एंड दैट। इससे मुझे जैसे याद आया कि मेरे एक ट्रिप हुआ था फिलीपींस में, आई थिंक दैट वाज लाइक 8 years ago। सो वहाँ मैं रेस्टोरेंट में था अपने कजन्स के साथ, हम बैठे खा रहे थे। तो ऑब्वियसली वहाँ ऐसे कुछ लोग होते हैं कि लाइक दे जैसे ना भीख मांगते हैं कि दे वांट सम मनी इन आर्म्स। तो हमने क्या किया था कि लाइक वी ऑर्डर अ सेपरेट बाउल, सेपरेट बाउल फॉर देम कि वो खाएं एंड ऑल दैट। तो उससे लाइक व्हेन यू सी उस तरह के लोग कि जब खाए वो खुश हो, लाइक एक किस्म के लाइक यू फील आल्सो हैप्पी, हम भी ज़रा खुश हो जाते कि एटलीस्ट वी ट्राई टू हेल्प समवन। बिल्कुल, एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है इस चीज से, किसी भी चीज से। आई मीन अगर आप किसी को हेल्प करो किसी भी लिहाज से, या सो या सो कभी दैट्स लोगों ने हाउ तो इट टॉफी इज। भी नहीं खाई होती। इट्स लाइक अमेजिंग जब आप उनके चेहरे देखते हो। किसी को तो ये भी नहीं पता होता कि बिरयानी का क्या टेस्ट है, बिकॉज उन्होंने जो खाने का वर्जन टेस्ट किया होता है ना, वो इंटायरली डिफरेंट होता है। आगे बिल्कुल। आप WWF के जाएं पेज पे और उनके यूट्यूब पेज पे आप उनकी रिसेंट वीडियो देखें। सो दे शोड दैट पीपल वर ईटिंग फूड ऑफ द सेम ग्राउंड जहाँ पे ऑब्वियसली जानवर का गंद है, केमिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। उन्होंने कभी खाने का वो असल मज़ा टेस्ट ही नहीं किया था। जब वो खाते हैं तो उनको कभी-कभार ये भी लगता है कि
इसमें जहर तो नहीं है. दे हैव सो मच रिजर्वेशंस टुवर्ड्स द फूड वी गिव देम. तो वो Yeah. इट्स रियली सैड, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मुझे बहुत अफसोस होता है अपने आप पे कि मैंने उन वक्तों में क्यों खाना ज़ाया किया. अगर मैं पैक करवा के किसी को दे देती, ये क्या हुआ अगर मैंने दिन में 2 दफ़ा खाना नहीं खाया, लाइक एक दफ़ा बिरयानी खा ली बहुत है, किसी और को दे दिया. Hmm. से ये चीज़ें ना बहुत रिफ्लेक्शन होती हैं एक सोसाइटी की. और अमेरिका भी इस चीज़ से फाइट करे. अमेरिका तो एक्चुअली दे आर डीलिंग इट विद मच मच वर्स कंडीशंस, बिकॉज उनका तो बहुत सारा, वो तो खाना बर्दाश्त ही नहीं करते. एक दिन से ज़्यादा पुराना इवन पैकेज फूड, लाइक जस्ट थ्रो इट अवे. और फिर वहाँ पे एक कंपनी है कोपिया, COPIA, और वो क्या करते हैं कि वो खाना ले लेते हैं. अगर आपने उनका सुपर बॉल वो देखा होगा इवेंट, उसमें जी जी जी. $300 चीज प्लेट्स, $300 Yeah. cheese plates. They are literally throwing it into trash. और वो कह रहे थे कि $300 कोई कम अमाउंट है. और उसी वक्त वो वहां अच्छा, से हाँ खाना सुना. पिकअप करते हैं और वहाँ लेके जाते हैं ऑर्फनेजेस और डिफरेंट लोगों तक. तो फिर लोग उन पे हंसते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है. देयर लाइक हमारे लिए कुछ नहीं होता, हमारे सामने खाना पड़े, हमें कुछ नहीं हो रहा. जिसके सामने नहीं है ना, वो जब आपका कूड़ा साफ करना जाएगा ना और देखेगा कि खराब आम पड़े हुए हैं, खराब चीजें पड़ी हैं, तो वो यही सोचेगा कि इस बंदे को ये ख्याल नहीं है कि वो मुझे दे दे. दे विल बी क्वेश्चनिंग आवर मॉरल्स, आवर डिग्री, हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो इल्म है, हमारे दीन पे भी सवाल उठाएंगे कि हमारे दीन में तो सिखाया गया है कि जो जो चीज़ बच जाए तो वो किसी और को दे दो, चाहे वो कपड़ा है, खाना है, हर चीज़. तो ये चीज़ें हम लोग को एहसास नहीं होगा. लिटरली इट वॉन्ट वर्क अनलेस एंड अनटिल आप बार बार इस पर सोचें. इट्स लाइक अ फूड फॉर थॉट थिंग. ये है डेफिनेटली. मतलब ये भी चीज, और मुझे इस चीज के बारे में सोच के अभी थोड़ा सा हो भी रहा है कि मतलब हम लोग कितने नाशुक्रे हैं वैसे, कि घर पे फॉर एग्जांपल दाल बनी हो, ओ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दाल, और आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस, आई हैव अ स्पेसिफिक चीज जो मैं खाऊंगी और ये और वगैरह. और देयर आर मेनी पीपल जिनको यार कुछ भी खाना नसीब नहीं होता. दैट्स जस्ट रियली सैड. Yes, Ramsha. Even I came across to some beggars. They weren't asking for money. They were just asking for के आटा दे दो, लाइक जस्ट मतलब 1 किलो आटा दे दो, या बच्चों ने 2 घंटे या 2 दिनों से रोटी नहीं खाई हुई, सॉरी फॉर 2 hours, 2 दिनों से रोटी नहीं खाई हुई. दे weren't asking for money, क्योंकि क्या होता है, we just give them 10, 100, maximum 100. आई नो दैट, आई नो पाकिस्तानीज, अगर हम मैक्सिमम दे भी दें तो 100, 500, ये 500 शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया. तो 100 या 10, मैक्सिमम हम 10 देते हैं, सॉरी मोस्टली हम 10 देते हैं, और 10 करके. एंड वी नो दैट कि महंगाई की जो कंडीशंस जा रही हैं, तो जी दे वर बिल्कुल. हाँ. डायरेक्टली आस्किंग फॉर क्या कि हमें फूड दे दो, क्योंकि वी दे नो दैट कि जो हम पैसे उन्हें दे रहे हैं, अब वो इस काबिल नहीं है कि उससे खाना ले सके. तो ये वाली कंडीशन है. और जिस तरह रिमशा ने मेंशन किया कि नाशुक्री, तो सीरियसली स्पेशली इन दिस कंडीशन ऑफ कोविड-19, we all four are here. I know, like I'm sure that कि हम चारों जो हैं यहाँ पे, we didn't face any food issue in these past 5 months. कि we didn't, हमें नहीं सुनने को मिला होगा कि अम्मी ने कहा हो कि यार इस तरह वो अब्बू के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है कि हमारे घर में 3 टाइम, लाइक आई डोंट थिंक सो कि टेबल पे जरा भी चेंज नजर आया होगा, फील भी हुआ होगा कि वी आर इन कोविड-19 सिचुएशन. लेकिन जो लोअर क्लास है, उनकी कंडीशन कोविड की वजह से, लाइक हंगर रेट और जो और बदतर हो वो गई है. बहुत ज्यादा हो गया. ये है डेफिनेटली, काफी हाई इसी चीज हुए थे. से नहीं, इसी चीज से तो ये एक और बात थी, जब बिल्कुल स्टार्ट था कोविड-19 का, व्हाटएवर, जब चीजें खत्म हो रही थी ग्रोसरी स्टोर से और सब कुछ इस तरह हो रहा था, तो माय पेरेंट्स ना, तो दे डिसाइडेड कि हम लोग मतलब छोटे पैकेजेस वगैरह बनाएंगे और हम कैंट से बाहर जाएंगे और गरीब लोगों में इस तरह बांटेंगे, क्योंकि बहुत किल्लत थी खाने की और वो सब कुछ. तो मामा ने मुझे बताया कि व्हेन दे वेंट आउटसाइड ना, उन्होंने एवं ही बाहर सिर्फ एक बंदे को दिया, यू नो, कोई 50 बंदे, उनमें बच्चे समेत, वो नहीं होता है कि कहते हैं अल्लाह माफ करे, बट दे वर रनिंग आफ्टर द कार लाइक ज़ॉम्बीज, लाइक नहीं होता, बिल्कुल अटैक मोड पे थे कि मतलब वी वांट फूड, गिव अस फूड राइट नाउ. मतलब इस तरह इनकी हालत इतनी थी कि मतलब हम लोग जो घरों पे, मतलब आर फ्रिजेस आर फुल, आर whatever, everything is full, और हम लोग इतना वो करे होते कि no, I'm not in a mood to eat this today, I'm in a mood to eat that today. And there are people who are literally like legit
suffering बाहर, और कोरोना तो एक सॉर्ट ऑफ एक वो चीज थी कि जिसने इसको और खराब कर दिया. एंड इट्स आल्सो आवर गवर्नमेंट्स फॉल्ट इस चीज को भी देख के कि आप चीज महंगी कर रहे हो. हम लोग अफोर्ड कर लेंगे, ठीक है, हम लोग कर लेंगे. व्हाट अबाउट द 60% ऑफ द पॉपुलेशन, वो कैसे अफोर्ड करेगी? Definitely, yeah, like had that was quite an issue जब हुआ था COVID-19 and pandemic and quarantine and all that. कि obviously especially उन लोगों के लिए जो उनका डेली वेजेस से घर चलता है, जब सब कुछ बंद हुआ है तो इनकम भी आना बंद हुआ है, तो एंड सच दैट ऑब्वियसली घर का चूल्हा भी बंद हो गया. सो इट्स प्रिटी ये है कि हालांकि यहाँ काफ़ी लोग हैं जो ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है कि सप्लाईज रेडी करें, चैरिटी बेस पे लोगों को घर में दें, बट एट द एंड बात वही है कि we tried our best to help each and everyone. At the end, वो एक government जब तक like if it's not necessary that government has to be involved, like it's supposed to be all of us. Like हर घर में से चलो कर लें. Like even here in Bahria town में यहाँ जब हुआ तो हमारा यहाँ एक कम्युनिटी बना हुआ है कि My Home Bahria Town के नाम से. तो यहाँ जो था कि लोगों ने डोनेशन दी, पैसे दिए ताकि सौदा लें, फिर उसको पैकिंग करके लाइक नीडी पीपल को दें. और इसी तरह जब ये भरीद भी है, हमने भी इसी सेंस में ये लोगों ने की है, कुर्बानी का जानवर लेके उसका गोश्त उधर नीडी लोगों को दे दें, सीधा नीडी लोगों को दे, बेशक घर तक ना आए. यहाँ तक लोगों ने यहाँ पे इंतजाम इतना किए हुए थे. बट एट द एंड वी हैव टू डू, अपने कोशिश करना चाहिए, to do our best to help each and every one of us. Yes, Hamza, I just read comment of I don't know Afzal Khan or Afzal Khan. He mentioned that कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू, बट प्रैक्टिकली भी आपको कुछ करना होगा. प्रैक्टिकली की जहाँ तक बात है, लाइक आई मेंशन दैट वी जस्ट स्टार्टेड आई गेस 17th of July, 1.5 month. So due to COVID-19 issues, we are not doing anything practically. Like हम usually सब कुछ webinars, servers वगैरह सब कुछ कर रहे हैं. तो practically वर्दा का ही idea और we are all agree कि हम first कोशिश करें, like university कस्ट कि हम अपने रेस्टोरेंट्स और रेस्टोरेंट्स तो नहीं, कैफे वालों से बात करें, अथॉरिटीज से हम रिक्वेस्ट करें कि ऑल दैट कि जो खाना बच जाता है, जो वो फेंक रहे हैं, कि वो बेशक वो दे, अगर वो इटसेल्फ नहीं करना चाहते तो वो पैक करके हमें दे दें, और वी विल अरेंज कि हम वो नीडीज तक पहुंचा दें. और फिर हम कुछ इस्लामाबाद में कुछ होटल्स हैं, हम उनसे भी ट्राई करें कि हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें कि उनका हम किसी भी ऑर्फनेज या किसी भी ओल्ड होम के साथ हम उनकी कोलैबोरेशन करा दें कि उनका जो भी वो खाना है एट द एंड ऑफ दैट डे वो उस जगह भिजवा दिए जाए. तो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू प्रैक्टिकली, बस कोविड वाले इश्यूज खत्म हो जाए. और सेकंड आई वांट कि गवर्नमेंट से जो मैं चाहती हूँ, लाइक आई वाज रीडिंग कॉलम ऑफ जावेद चौधरी, ही मेंशनड, उसने अपना ईरान का एक स्ट्रिप मेंशन किया था, उसमें उसने एक बात मेंशन की, आई रियली लाइक दैट, कि वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे अगर एट द एंड जब अपनी टेबल, व्हेन यू आर लिविंग योर टेबल, तो उसमें अगर आपकी टेबल पे कोई खाना पड़ा हो ना, प्लेट या लाइक आपकी साफ नहीं है, प्लेट में या सर्विंग डिश में, तो वो आपके बिल के साथ फाइन ऐड होता है. और वो चीज सोच के आपको नहीं पता, लाइक वहां पे जाने वाला हर बंदा, इवन पाकिस्तानीज भी जो हर मशहूर है, लाइक दे आर फेमस के वो फूड वेस्ट के लिए, उसके बावजूद वहां से लाइक उनके टेबल्स ऐसे साफ होते हैं कि वाकई जिस तरह वो इस्लाम में है कि आपको अपनी प्लेट बिल्कुल साफ करनी चाहिए. तो आई जस्ट वांट कि अगर गवर्नमेंट ये कर दे ना कि हमारे भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स इस बात पे ये कर दें कि लाइक यू विल बी फाइंड इफ एट द एंड ऑफ कि आपका टेबल में कोई ऊपर कुछ भी हो, तो मे बी इट विल वर्क. मरियम भाई, आपने किस मुल्क का बताया, किधर था ये? मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ईरान, आई गेस ईरान की सिटी थी. सिमिलर ये चीज आई थिंक यूएई में भी एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट ने अपना पॉलिसी में रखा है कि जी अगर इफ यू नॉट गोना लाइक नी खाना क्लियर करके जाओगे, लाइक आई थिंक इट वाज लाइक 50 dirham is the fine or something like that, ना around I think 20 or 50 dirham between that. उन्होंने ये पॉलिसी बनाया, अगर नहीं खत्म कर पाएंगे आपको इतना का फाइन चढ़ेगा. तो लाइक दे आर पीपल देयर दे के वो इस तरह करें, इम्प्लीमेंट करें ताकि लोग फॉलो कर सकें. Okay, we got a comment from the same guy, Afzal Khan.
सिस्टर का कस में अगर कोई ऐसी सोसाइटी है तो हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। चाहते हैं। आई सोसाइटी विश तो नहीं है, ऐसी कोई सोसाइटी होती, लेकिन yes maybe we need boys क्योंकि obviously I mentioned that there is just a force of 14 girls, so maybe we need boys कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, रेस्टोरेंट वो कैफेज एग्री हो जाते हैं हमें अपना खाना देने के लिए, कि हमें वो ज़रूरत हो कि वो जो के ओल्ड होम या जो भी हम जिस भी इंस्टीट्यूट को या ऑर्फनेज को सिलेक्ट करें वहां तक पहुंचाने में। Okay guys, सुन लिया बात, boys are needed, we need muscles to carry out the job. Okay? Okay, Hamza. Okay. So that's how we have to do it. हमें करना तो पड़ेगा, obviously इंसानियत के नाम पे हमने कुछ करना है। बिल्कुल। So लेकिन लाजमी नहीं है बॉयज, इन्होंने लाजमी नहीं बोला, so हाँ yeah. ये लाजमी नहीं बोला, don't take it wrong man. So that's how it is. तो ऐसे करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे and all that, क्योंकि अगर देखा जाए like in the past, before the modern age, like in the past like food was very scarce, बहुत मुश्किल से खाना मिलता था लोगों को। अब इस टाइम में ये है कि there's abundance of food, उसके बावजूद भी लोगों को खाना नहीं मिलता। तो हमें like we have to, अगर देखा जाए ना like in the past देखा जाए like in the Roman Empire suppose, उस वक्त जो elites लोग होते हैं, they have brown bread, they've considered brown bread very they call it a peasant food. They call shellfish and crabs, they call this type of food peasant food. And if we look at this time, they consider the brown bread the elite food, the shellfish and lobsters and all this are all elite food, and all like pretty much everything reversed, सब कुछ उल्टा हो गया पिछले ज़माने से। So like mentality and thinking, all that is all game of this and all that. यहाँ तो वही बात आ जाती है कि हमने अपने लिए जितना मजे का खाना बनाया है, उतने मजे के कॉन्सिक्वेंसेस बनाया, लाइक साइड इफेक्ट्स भी उतने ही मजे के हैं। लाइक हम देख सकते हैं कि फूड वेस्ट से क्या क्या हो रहा है, पर वो हमें नजर नहीं आते, विजिबल नहीं होता कि अच्छा ये हो रहा है। तो ये होता है, दिस हैपेंस, बट इट इज साइंटिफिकली सेड दैट वी आर द मोस्ट लकी जनरेशन, सिविलाइजेशन। हम जैसी सिविलाइजेशन शायद ही कोई हो, और हम उतने ही अनलकी हैं बाय द वे, बिकॉज हमसे पहले वाले लोग बहुत समझदार थे, उनको कैंपेन की जरूरत नहीं थी, वो काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक कर लेते थे अपनी मिस्टेक्स। हमारे सामने तो हमारी मिस्टेक्स की लिस्ट रख दो, पर हमने नहीं ठीक होना, हमारी अपनी जिद है कि ना वही आई हैव माई ओन ओपिनियन, आई हैव माई वे ऑफ लिविंग, और फिर हम इंस्टाग्राम पे जाके कीबोर्ड वॉरियर्स बनते हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो वी जस्ट स्लाइड अवे फ्रॉम इट। Yeah, we just back off. Yeah, like simple, all bark no bite, जो है saying है ना, like we are like pretty much all bark and no bite, जब तक हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। So that's pretty much how we have to deal with this stuff. So guys, आपके क्या recommendation है, हम like if all of us like our viewers, कि like if you have to start from our homes, कि how should we manage food from shopping till the dinner table? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड शॉप दैट, लाइक वो वही वाली बात वर्दा ने कहा था कि हम ज़रूरत से ज़्यादा वाला सीन होता है कि खाना कम पड़ जाए और खाना ज़्यादा हो जाए पर कम ना पड़े। तो वो वाली चीज़ को अपने, हमें वो वाली जो मेंटेलिटी है वी हैव टू चेंज दैट। लाइक हमें वी शुड बाय, लाइक जितना हमें चाहिए उतना ही आप करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब जितना कोविड के आ गया था तो इसमें अच्छा था कि वो अगर हमारे पास एक मंथ की ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ हो। पहले ये चीज़ कि आप ज़रूरत के मुताबिक ही खरीदें। सेकंड पॉइंट इज दैट कि व्हेन यू कुक समथिंग और वो बच जाता है, लाइक यू आपको पता है कि यू आर गोइंग टू कुक समथिंग एल्स फॉर डिनर ऑल दैट, तो वो लंच में जो चीज़ आपकी बच गई है दैट यू स्टोर्ड इन फ्रिज एंड यू नो दैट कि योर हिस्ट्री, लाइक आपको पता है हर घर की एक हिस्ट्री होती है एंड यू नो दैट योर हिस्ट्री के ये 2 दिन पड़ा रहेगा, लकीली किसी ने खा लिया तो इट्स गुड, अदरवाइज के इट विल स्पॉइल एंड देन वी आर गोइंग टू थ्रो दैट इन गार्बेज। तो वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। अगर उसी वक्त आपको फील हो रहा है कि यार ये बच गया, तो आप घर से बाहर निकलें, किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें, ऑल दैट एक उस तरह करें उसको, मतलब स्पॉइल होके जब आपने उसको गार्बेज में ही गार्बेज करना है तो उससे बेहतर है कि आप उसको दे दें किसी को।
तो और सेकंड चीज लाइक मतलब वो जो खुशी होगी दैट इज फूड फॉर योर सोल, अपनी रूह के लिए, लाइक एक वो इनर पीस आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज कि अगर जिस तरह मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती जाऊँ कि वी लाइक व्हेन वी आर डूइंग सर्विस, तो हमने उसमें लोगों को बताया यू कैन यूज इवन पील्स ऑफ फूड, like banana हम्म peels you can use for face, hairs, like you can google it, like we are all are having net. Instead of you are, if you are going to throw that all the banana peels in the dustbin, you can use that. तो एक इस तरह like you have to be little bit creative. I don't know, like I guess banana peels के अलावा जो egg shells होते हैं, even हम्म if someone is interesting in art, तो वो उस पे बहुत अच्छे आप पोस्टर कलर्स कर सकते हैं, दैट यू कैन उस पे वो एक बहुत अच्छी सी एक्शल्स पे वो ड्राइंग हो सकती है, और देन आप उसको कंपोस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद रेस्टोरेंट का जैसे आई मेंशन दैट कि जो आप वहाँ पे जो बच जाता है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट रेस्टोरेंट ओनर इज गोइंग टू डू व्हाट विद दैट लेफ्ट ओवर फूड, तो आप क्योंकि यू पेड दैट ना, यू ओन दैट कि यू कैन आस्क देम कि आप वो आपको पैक कर दें, तो वो आप उसको पैक करवा लें। और यूनिवर्सिटी आप बेशक घर लाना चाहते हैं इट्स ओके, बट अगर आप रेस्टोरेंट के बाहर कोई बैगर है, नीडी है, जिसको भी आप दे दें तो इट्स गुड। और वेडिंग में जब आप जाते हैं तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपकी प्लेट में जो भी खाना बच जाएगा, यू विल बी द सोर्स, कि जो एक बंदा जो भूखा सोएगा यू विल बी द रीजन समहाउ, क्योंकि आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो उतना ही डालें जितना आप खा सकते हैं। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज की अगर बात की जाए तो वही आइडिया वाला है, लाइक कि देर एक रूल होना चाहिए फाइन वाला। दैट्स ऑल फ्रॉम माइन साइड, थैंक यू। Okay, we have a Thank you comment. so much. हाँ, show please. सर आपकी सब बातें ठीक हैं, बट फूड इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। हम लोग छोटा मोटा काम शुरू करवा सकते हैं लोगों का, जैसे किसी इंसान को ठेला लगा दे छोटा सा, जिससे वो फैमिली को सपोर्ट कर सके। बिकॉज बेगिंग इज़ अ कर्स। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कास्ट में कई अमीर काफी लोग काफी स्टडी कर रहे काफी हैं, अमीर काफी लोग स्टडी कर रहे हैं। कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय योर काफी? Well, Like काफी it's तो just like you have a gang of some like nothing. well चिट काफी तो कुछ कह नहीं सकते, like it's a bit stretched out word काफी लोग, but we हम ये है कि कर रहे हैं, like as they said, this is just a start and trying to कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को awareness हो कि इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये है कि यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कर रहे हैं इस पे काम। लाइक आई नो, लाइक मेरे एक बैचमेट है, मेरे लाइक दोस्त है, वो हुज़ैफा हसनदार, वो चैरिटी वर्क करता है। लाइक ही हेल्प्ड आउट ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, लाइक पैकेजेस बनाए, खाने की राशन तैयार किया है और लोगों को बांटा है दोज़ हू आर नीड। सो देयर आर पीपल हियर इन आइदर दैट, अगर वो यूनिवर्सिटी में हो या यूनिवर्सिटी के बाहर हो, लोग कर रहे हैं काम। It's like you can say they're the unsung heroes. Okay, like they're doing it, but they're not doing it for like fame and stuff like that. So ये है बात। नहीं, कोई भी कैंपेन फेम के लिए नहीं होती, प्रॉफिट के लिए नहीं होती। दैट इज व्हाई कैंपेन्स सक्सीड, बिकॉज उनका कोई अपना मॉनेटरी फायदा नहीं होता। आप फायदा देखेंगे तो आपका नुकसान होगा, अवेयरनेस में नुकसान। आपको कोई फायदा नहीं है। और ये हमारे बहुत सवाल उठते हैं जब कोई नया न्यू कैंपेन बनाते, सबसे पहले ये होता है मैं इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ, एंड वी आर लाइक सेटल डाउन। अगर कि पैसे कमाने तो कुछ और करो, क्योंकि ये काम कैंपेन करना, लोगों को जाके समझाना और फिर उनकी बातें सुनना, फिर दोबारा एफर्ट करना, वीडियोस बनाना और अरेंज करवाना डिफरेंट सेशंस, दिस इज़ रियली टफ। और आप मोटिवेशन लूज़ कर देते हो। तो हमने उनको कहा कि अगर आपको पैसे कमाने तो दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट वेज, और इसमें पैसे कोई हमने भी अभी तक कुछ नहीं कमाया। सो द ओनली थिंग इज़ जस्ट ईट व्हाटएवर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ, हॉस्टल के किचन्स में सब्जी वाला सालन और दाल सबसे पहले वो तो हमेशा बच जाता है, पर चिकन का सालन कुछ भी, अगर कढ़ाई होगी, बिरयानी होगी, खत्म हो जाएगा, बाकियों को नहीं मिलेगा जो लेट शिफ्ट के बाद आएंगे। तो यही बात है कि अच्छा। हम लोग को एहसास नहीं है। ठीक है, हमारी सर्वे ने हमें बताया कि लोग पिकी ईटर्स हैं, ठीक है, पिकी ईटर्स हैं, अपनी मर्जी से खाना या कोई चीज़ पसंद आई बाहर से, वो एक अलग बात है। आप अगर नहीं खा रहे हो तो आप इस चीज़ का एहसास कर लो कि आप वहाँ पैसे दे रहे हो। 50.8% हमारी सैलरी, मंथली इनकम हमारे पेरेंट्स की खाने पे लगती है।
मतलब आधी सैलरी चाहे जितनी भी हो वो लगती ही खाने पे। और कुछ लोगों की तो सिर्फ पूरी सैलरी खाने के लिए होती है, उनको कुछ और जीना मरना नहीं होता, सिर्फ खाना होता है। तो आप बस इसी चीज़ का एहसास कर लो कि आपने पैसे दिए हैं, पीछे से एक फार्मर बैठ के वो चीज़ बना रहा है, एक इंडस्ट्री में वो चीज़ पैकेज हो रही है, एक आदमी वो ड्राइव करके ट्रक मीलों दूर से वो ड्राइव करके वो खाना लाता है मार्केट में, आप उठा के घर लाते हो और फ्रिज भर देते हो और 10 दिन बाद जी एक्सपायर होगी, खराब हो गया है, फेंक दो। इस कल्चर से निकल आए, अपने आप को रीसेट करें, रीप्रोग्राम करें। अगर हम दूसरे टॉपिक्स पे वो क्या कर सकते हैं ना, हम कह सकते हैं ओ मुझे फेमिनिज्म और मी टू मूवमेंट और इन चीज़ों का होश है, या इन चीज़ों का भी होश होना चाहिए जो आपके सबसे करीब है। आपके सबसे करीब अभी आपका ट्रैश बिन है, अपने ट्रैश बिन को कंट्रोल Definitely, करें। देयर इज definitely, नथिंग definitely. मोर इम्पोर्टेंट। यस, यहाँ तो प्लास्टिक की भी बात आती है, आपकी बहुत सारी चीजें। एंड अगेन, यू आर नॉट जज, योर जजमेंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन पीपल हु आर बेटर देन यू और हु आर फेमस देन यू। योर जजमेंट इज Mhm. ऑलवेज बेस्ड ऑन पीपल हु आर लेसन देन यू। जो आपसे कमजोर है, आपसे कमतर है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मैटर करना चाहिए। अमीर लोगों का क्या जाता है यार, हम सबको पता है, जो अमीर है वो खुश है, जो गरीब है वो बस आपके सामने है। Mhm. Acha, I just, अच्छा so तो excuse me, Hamza. I just want to Hamza and Rimsha. I just want to reply Afzal's comment. Like okay. उन्होंने जो point raise किया कि किसी को I'm totally agree कि उनकी बात, लेकिन I just want असल में our campaign like WWF has given us like many options: water, food, climate, panda. Like we know that panda is going to be extinct, Allah na करे. तो but which Mhm. हमने food को choose किया. So basically our campaign is about food. So that's why we are talking about food waste, all that. और जहाँ तक बात है कि he's totally agree कि begging is not a गुड वे, कि किसी को Yeah, ठेला वगैरह ऑल दैट के कस्ट के स्टूडेंट्स, यस आई नो दैट कि कस्ट के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अमीर है, बट फैक्ट इज दैट वी आर नॉट, आवर पेरेंट्स आर, वी yeah. आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स। तो जो भी पैसा है बेसिकली हमारे उनका है, तो वो हम इसलिए बेसिकली वही लाइक मी एंड हमजा रिमशा, हम आवर पेरेंट्स आर गिविंग अस, सो वी कांट कि हम किसी को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा सके। सो आवर कैंपेन बेसिकली लेफ्ट ओवर चेयर्स इज टोटली फोकस्ड ऑन, और ना हम कोई फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट हाउ टू मैनेज फूड वेस्ट। We can raise awareness. हम अपना आवाज उठा के बात बोल सकते हैं कि यार ये गलत है, हमें इसका कुछ करना चाहिए। अब Students आई होते थिंक हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अवेयरनेस, और हम सबके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दिस इशू। सो आई थिंक वी शुड एंड इट, Hamza. Yeah, so The so most awaited part of the whole show, that's the hadith of the yes. day. Ta-da. Okay. Anyways. So go ahead. Acha, so this hadith is from Sahih Muslim, as Prophet, peace be upon him, said, So now. if a morsel of food falls for any of you, he should take it and wipe it clean of any dirt and then eat it. He should not leave it for the shaitan. Very, very appropriate Very, and very, very nice. perfect for today's show. So Very thank you nice, so Hadid. much. Thank you Thank you so so much much. guys for having us. Thank you Thank so you much for guys. Thank you coming. so much. Thank you so Thank you much. guys for tuning in to Voice of Capital FM 97, our podcast, Natkatnama. Do tune in next week for more exciting shows. Have a great day. Allah Hafiz. Allah Hafiz.